ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, every one of you. I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. So this is me, Fasiha Khan, today here at the Boer Club. And eventually, before going to start the session, I actually got to know about the Boer Club by Sana, I guess. Okay, so my topic is today regarding the stigma to strength. So yes, let's moving in. सबसे पहले तो barakallah feek to all of those who are on time. I actually notice everyone who comes on time, because this is something which is very important for me. मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैं ये देखूं कि कौन लोग वक्त पे आते हैं, और क्योंकि दिस इज द स्किल वे यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी। हमें हर तरह की स्किल सीखने के लिए हम कितने बेताब रहते हैं, बट दिस इज द स्किल जो मुफ्त में आपके पास आती है, एंड यू रियली नीड टू वर्क ओवर इट। इस मुफ्त की स्किल को आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। And with that, inshallah, let's talk about something regarding the stigma to strength. अच्छा, how many of you are here जिनको ये लगता है कि वो गम से भी जो है वो फट जाते हैं और खुशी से भी फूल जाते हैं? मतलब इट्स वेरी इजी फॉर देम कि गम से बड़ी जल्दी क्रैक हो जाना है और खुशी से बड़ी जल्दी फूल जाते हैं। How many of you are those who actually have such tendency in their personality and their emotional stuff? Okay, so yes, many, as always. And it's not a problem. We will work how it cannot be a problem and where it is actually the problem. Okay, before 90%, okay. अच्छा, percentages दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, because that will also give you the check about yourself कि कितने % ऐसा है। And one thing which I really want you कि अपने पास नोटबुक रखें, अपने पास नोट टेकिंग करें, एंड यहाँ पे जरूर मेंशन कर दें कि आज डेट क्या है और मैं कितने % जो है ना मैं फर्जाइल हो जाती हूँ या वर्नरेबल हो जाती हूँ, खुशी से भी और गम से भी। Because I really want you to work on it. If I am giving you my coming 1 hour, then I really want you to spend your next 100 days with the practice which I teach you today. Okay, and I'm not going to teach literally teaching. I'm actually here to see that how we can work on the mindset which we have, how we can work on ourselves, which we are and which we really want to be. Okay. So there's always two sort of mindsets, two kind of basic mindsets which we have in our society. ठीक है, हमेशा mindset की दो तरह की types होती हैं। एक होती है victim mindset और एक होता है victor mindset। ठीक है, we will resonate later how it is actually impacting us as a woman, but the very first thing that there are only two mindsets which are probably have the tendency to consume you. या तो वो होता है victor mindset या वो होता है victim mindset. How it is, I always give my very personal, my very touchy and my very मतलब हर जगह मैं ये एग्जांपल देती हूँ, और मैं इतनी देना चाहती हूँ एग्जांपल कि ये हर औरत के अंदर इंस्टिल हो जाए। ठीक है, I always give one example because for me the ummah is actually, or ummah, the Muslim ummah, the whole society which we have regarding Muslims and non-Muslims, इनको शेप करने वाली एक चीज है, इन सबको एक चीज शेप करती है, and that is woman. That is woman. औरत है जो शेप करती है पूरी सोसाइटी को। ठीक है, so let's jump in. If I say there are two mothers, दो माएँ हैं, ठीक है, और वो दो माएँ जो हैं दे आर लाइक, एक मतलब वो जो एक माँ है वो बिल्कुल काली है, बहुत मोटी सी है, और उसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। वो अपने उसके बच्चे जो हैं वो 12 साल का बेटी हो चुकी है और 13 साल का उसका बेटा हो चुका है। और वो जो माँ है वो अपने बच्चों को बिठा के तो कहती है कि बेटा डू यू नो कि आपको पता है कि मैं जो हूँ ना बहुत ही बचपन से मैं बहुत काली सी थी, मेरा रंग बहुत काला था, और सब बहन भाई मेरे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मैं तो काली सी थी। मैं मोटी भी थी, मैं काली भी थी, मैं भद्दी भी थी, मुझे कोई पसंद नहीं करता था।
मेरे सब बहन भाई बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, लेकिन मैं जब स्कूल गई तो मुझसे कुछ याद भी नहीं होता था, मेरे नंबर भी अच्छे नहीं थे, मैं सही पढ़ भी नहीं पाती थी, मेरी मुझसे मुझे कुछ याद ही नहीं होता था। मेरे घर वाले ने मुझे बड़ा कोसते थे, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता था, मुझसे कुछ याद नहीं होता था। और मैंने बड़ी मुश्किल से, मैं क्लास में ना एक से दूसरी क्लास में जाती थी, फिर मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे स्कूल से हटा दिया और मेरी माँ ने ना मुझे घर के कामों पे लगा दिया। अब वो सुबह को जो है मैं उठ के माँ के साथ आटा गूंथती थी, घर की सफाई करती थी, माँ के साथ किचन में काम करती थी, खाने बनाती थी, कपड़े धोती थी, मेरी सारी जिंदगी जो है ना इसी काम में गुजर गई। मेरी माँ ने मुझे सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए डाल दिया एक जगह पे, और वहां पे मैंने सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दी, मैं कपड़े सीना शुरू हो गई, फिर मेरे लिए रिश्ता आया, मेरी शादी हो गई। मेरे घर वालों ने बिल्कुल नहीं देखा कि वो लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं, उन्होंने कहा बस इसके लिए तो यही बहुत है, उन्होंने मेरी शादी कर दी। अब उन्होंने मेरी शादी कर दी तो मेरे शौहर ने थोड़े अरसे बाद कमाना छोड़ दिया, बीमार रहना शुरू हो गया, ससुराल वालों ने मुझे अलग तंग किए, तुम लोग अलग पैदा हो गए, बस फिर मैं तो बिल्कुल ही रुल गई, मेरी जिंदगी रुल गई। मैंने कपड़े सी सी के तुम लोगों को पाला है, और अब अल्लाह का वास्ता है तुम लोग ना मेरी गर्दन ना झुका देना, मेरा सर ना झुकवा देना, मेरी नाक ना कटवा देना, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैंने सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी। ठीक है। एंड देयर इज अनदर मदर, एक और माँ है, माँ नंबर 2। ठीक है। आई रियली वांट यू टू कंसंट्रेट। माँ नंबर 2 कहती है कि बेटा आपको पता है कि मेरा मैं जब पैदा हुई तो मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, और जब मैं पैदा हुई तो मेरा जो रंग है वो मेरी बाकी बहन भाइयों की निस्बत दबा हुआ था, और मेरी जो मेमोरी थी वो ज्यादा शार्प नहीं थी। आई वॉज नॉट गुड एट स्कूलिंग, मुझे एक रॉ माहौल पसंद था, मैं एक खुले माहौल और आजाद माहौल में सांस लेना चाहती थी। मुझसे कुछ एग्जैक्टली याद नहीं होता था जैसे सब लोगों को याद होता है, तो मेरे पेरेंट्स ने फैसला किया कि वो मुझे स्कूल नहीं बल्कि मुझे घर में रखें, क्योंकि मेरे में वो कैपेसिटी नहीं थी। फिर मेरी अम्मी ने मुझे अपने साथ घर के काम में लगा लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं घर के कामों में इतनी शार्प हो गई जितना मेरे घर में कोई और बहन नहीं थी। मुझे खाने बनाने भी आ गए, मुझे घर संभालना भी आ गया, और मुझे सिलाई कढ़ाई भी आ गई जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, जिसमें मैं शार्प थी, जिसमें मैं हमेशा एक्सेल रही हूँ। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मुझ पे नए चैलेंजेस आ गए। मेरे शौहर ने, आपके फादर ने जो है, उनकी हेल्थ सही नहीं रही, तो मैंने बचा बजाय ये कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाती हूँ, किसी से मांगती, अल्लाह ताला ने मुझे एक स्किल दिया था और वो था सिलाई कढ़ाई का। मैंने घर में बैठ के कपड़े सीना शुरू किए, और मैंने खुददारी के साथ तुम लोगों को पाला, मैंने हर हालात को मैंने फेस किया। एंड नाउ उसका रिजल्ट ये है कि तुम बच्चे पढ़ रहे हो और तुम लोग इज्जत से अपने घरों में हो, और मैं तुम लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ। एंड आई एम देयर टू सपोर्ट, एंड आई एम देयर टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस। और मैंने अपनी जिंदगी में हर चैलेंज को फेस किया, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी अपनी जिंदगी में हर आने वाले चैलेंज को फेस करो। तुम लोग जिंदगी में जिस मुकाम में जाओ, जहां मुश्किल आए, तुम मुश्किल से घबराओ नहीं, बल्कि तुम फेस करो कि तुम्हारी माँ ने बचपन से फेस किया। अब मुझे बताएं कि ये माँ नंबर 1 के बच्चे इस दुनिया में सर उठा के जीने के काबिल होंगे, या माँ नंबर 2 के बच्चे इस दुनिया में सर उठा के जीने के काबिल होंगे? माँ नंबर 1 के बच्चे जो हैं वो अब हर प्रॉब्लम को, चैलेंज को फेस करेंगे, या माँ नंबर 2 के बच्चे चैलेंजेस को फेस करेंगे? जिंदगी तो एक सी गुजरी है, सिमिलैरिटी थी, सेम थी, फर्क क्या था? फर्क क्या था? माइंडसेट। यस, माइंडसेट का फर्क था। इस माइंडसेट ने क्या किया, सोसाइटी में दो ऐसे बच्चे निकाले जो अपनी जिंदगी में जब भी जिस भी मुकाम पे जाएंगे सर उठा के खड़े होंगे, घबराएंगे नहीं, फेस करेंगे, और अल्लाह की दी हुई तकदीर पे राजी होंगे। देखिए, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में मुश्किल ना हो। ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी मुश्किल ना हो, जिसके लिए प्रॉब्लम्स ना हो, जिसके लिए चीजें प्रॉब्लमैटिक ना हो। कोई भी ऐसा नहीं है। कौन है यहाँ पे जो कहता है यार मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ट्रबल देखा ही नहीं, आई वांट टू सी कि ये परेशानी क्या होती है। हैव यू एवर, अगर मैं कहूँ यार आप लोग एक फिल्म देखने जाओ, और वो फिल्म की स्टोरी ये है कि फिल्म शुरू होती है, हीरो के पास बड़ा सारा घर होता है, फिल्म में आगे जाते हैं, हीरो को एक गाड़ी पसंद आती है, वो कार्ड देता है और वो गाड़ी मिल जाती है।
और फिर हीरो को जो है वो एक लड़की पसंद आती है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है, पेरेंट्स जाते हैं और उसकी शादी हो जाती है। और फिर जो है एक मुल्क के साथ जंग होती है, वो जंग लड़ता ही नहीं है, वो जाता है उनसे जाके निगोशिएट करता है, उनसे कहता है ये देखिए, ये तो ये आपका फायदा, ये मेरा फायदा, ऐसा करें जंग खत्म कर देते हैं, जंग खत्म हो जाती है। और आखिर में उसको मेडल मिल जाता है। ठीक है, कोई फाइट नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ कोई क्लाइमेक्स नहीं है, इट्स लाइक गो, गो एंड ईट, इट्स अ पीस ऑफ केक, बल्कि पीस ऑफ ब्रोनी, आई गेस आजकल सब यही सब खाते हैं, राइट? तो इट्स लाइक ए ड्रीम केक। ठीक है, तो हाउ हाउ इट गोइंग टू बी? क्या देखने जाएंगे आप वो मूवी? क्या आप वो किसी को रिकमेंड करेंगे? क्या आप कहेंगे यस गो अहेड, गो एंड वॉच, सी व्हाट्स एन इंस्पिरेशनल मूवी? नो, nobody does, because the difficulties and struggles makes you the hero. Not everything in your plate makes you a hero. There are two systems in this world. One is the Western worldview, and the second is Islamic worldview. In the Western worldview, we always see the results. We work because of the result, base. हम result based काम करते हैं. In Western worldview, if you get the results, you are successful, isn't it? जितनी सेल्स हुई है उतने कामयाब है, जितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उतने कामयाब है, जितना काम किया आप उतने कामयाब है। इज इट सो? ऐसे ही सोसाइटी चल रही है ना। हम रिजल्ट बेस्ड काम करें ना, बच्चे का A+ ग्रेड आ रहा है, A ग्रेड आ रहा है, B ग्रेड आ रहा है, इज इट सो? ऐसा ही चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा? ऐसा चल रहा है। आई रियली वॉन्ट योर आंसर्स देयर इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज मुझे लगेगा आप सो गए हैं या समझ नहीं आ रही है। अगर सो गए तब भी बता दें, अगर बोर हो रहे हैं तब भी बता दें, आई विल चेंज द टॉपिक। आई एम गुड इन चेंजिंग टॉपिक्स। अगर सो रहे हो तो बता देना, ठीक है? गुड, जाग रहे हैं, दैट्स गुड। तो दुनिया में ऐसे ही है कि यू एक्चुअली डू थिंग्स रिजल्ट बेस्ड, दिस इज द सिस्टम बी विच वी कॉल द वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। बस सही है, पीस ऑफ का सुन के जाके, गुड। So, लेकिन in Islamic worldview, you actually get ajr and become successful on your efforts. Islamic paradigm doesn't see the result which you created. Islamic paradigm sees the effort which you put in. हम रिजल्ट बेस्ड जिंदगी गुजारने इस दुनिया में नहीं आए थे। अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में हमसे क्वांटिटी नहीं मांगी थी, हमसे क्वालिटी मांगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा मोमिन किसी नेक काम का इरादा करता है तो उसको उसका अजर मिल जाता है, नेकी मिल जाती है, नेकी मिल जाती है। और जब वो करता है तो उसको 1 से 700 गुना सवाब मिलता है। ठीक है, लेकिन जब इंसान बुराई का इरादा करता है दिल में तो गुना नहीं मिलता, लेकिन जब कर गुजरता है तो 1 गुना मिलता है। इट मीन्स हमारा जो दीन है वो रिजल्ट बेस्ड काम नहीं कर रहा, वो एफर्ट बेस्ड काम कर रहा है। एक इंसान कुरान सीधा पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको अजर है, लेकिन जो अटक के पढ़ता है उसके लिए क्या है? जन्नतान, 2 जन्नतें, 2 ज्यादा। Can we see the mindset which Islam is actually bringing in our lives? एक औरत के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, डजेंट मैटर कि वो उसका माइंडसेट क्या है, बट इफ शी इज एक्चुअली देयर एंड स्ट्रगलिंग इन हर लाइफ, दैट इज एक्चुअली व्हाट शी इज डूइंग। हमने जो ये रिजल्ट बेस बना दिया ना कि मेरे पास ये डिग्री होगी तो मैं कुछ बनूंगी, मेरे पास इस तरह का मियाँ होगा तो मैं कुछ बनूंगी, मेरे पास इस तरह का घर होगा तो मैं कुछ बनूंगी, मेरे नाम के नीचे ये लग जाएगा तो मैं कुछ बनूंगी, मेरा आउटर लुक कोई बहुत ब्रांडेड कॉल दे रहा होगा तब मैं कुछ बन जाऊंगी। नो, दिस इज नॉट द वर्ल्ड वे वी हैव टू लिव इन। हमें ये जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना, जो स्टिग्मा, हमारी जो स्टिग्मा वाली प्रॉब्लम है, ये जो माइंडसेट वाली प्रॉब्लम है, दैट इज कमिंग बिकॉज the world has told, they actually told us कि if you are looking good, if you can, see, अगर तुम जो दिखता है ना वो बिकता है। have we all heard that stuff? जो दिखता है वो बिकता है, सबने सुना हुआ है ना ये। तो हम जिस माइंडसेट में जो हमें चाहिए वो कुछ और है, जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब, लेकिन जिस पैरामीटर पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं दैट इज डिफरेंट। ठीक है, सो होता ये है कि इस वक्त की जो माँ रेज हो रही है, जो इस वक्त की औरत रेज हो रही है, वो एक इंतहाई डर को एक छोटे फियरफुल माइंड के साथ है
क्योंकि शी इज एक्चुअली लुकिंग फॉर रिजल्ट इन दिस दुनिया, एंड इन दिस दुनिया यू आर नॉट गोइंग टू टेक द रिजल्ट एवर। मिल जाता है कोई दुनिया का हंसना मिलता है, तो हंसना इज नॉट इज इक्वल टू मनी। why we always is equal the hasana is equal to the worldly luxuries? A moment doesn't need the luxuries at all. We don't need it. People used to say कि एक मोमिन के पास लग्जरी हो सकती है डेफिनेटली, अगर उसको अल्लाह की तरफ से उसके पास आ रहा है, उसके पास माल आ रहा है दुनिया का, हो सकती है, बट दिस इज नॉट द ओनली गोल ऑफ ए मोमिन। दिस दुनिया इज अ टेस्ट फॉर अस एट एनी कॉस्ट। तो हमने क्या किया, हमने तो रिजल्ट बेस्ड दुनिया मांग ली है, हमने रिजल्ट बेस्ड दुनिया के पैरामीटर में जी रहे। हमारी ये जो ऐनक है इस वक्त, ये वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग देख रही है, और जब देख रही है तो हम कहते हैं, हम रोते हैं, पिटते हैं, बट ओके दिस इज गेटिंग मोर इंटेंस एंड बोरिंग, बट लेट मी कम टू द रियल पॉइंट, जो कि हम थोड़ा रेजोनेट कर सकें। सो द प्रॉब्लम इज कि ये जो हमारा विक्टिम माइंडसेट है ना, that is actually producing the fearful men and women in around her. अगर आज कोई लड़की कहती ना यार मुझे बहुत डर लगता है, रीजन इज बिहाइंड द माइंडसेट। और अगर आप चाहते हैं ना कि आगे आने वाली आपकी जितनी भी नस्लें हैं वो फियरफुल रहे, कीप ऑन इट, ऐसे ही जिए जैसे जी रही हैं, जीती रहे ऐसे। और लेकिन अगर आप चाहती हैं ना कि यार आई रियली वांट टू बी द रिसोर्स फॉर दिस उम्मा, then you have to change your mindset, then we actually have to work on it, otherwise खलास है, खत्म है, कोई जरूरत नहीं है, अभी पैकअप कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही रहता है इस उम्मत में, हमें ना माएँ चाहिए। वी डिडंट प्रोड्यूस द मदर्स। मैं आपको एक हिस्ट्री का वाक्य बताती हूँ। वो हिस्ट्री का वाक्य जो है ना, मैंने 2011 में सुना था, बाय द एंड ऑफ 2011, or in the start of 2012 there was a course which was happening, but that actually the part of history actually वो मेरे दिमाग में ना लिख गया था, वो मेरे दिल पे नक्श हो गया, बिकॉज मेरा दिमाग उसके बाद से लेकर ऑनवर्ड्स इसी पे प्रोसेसिंग करता रहा, and now I can understand and I can resonate the whole picture, and I really want to share a piece of history with you guys. बगदाद पे जब गोल्डन एरा था, उस पे ततारियों ने हमला कर दिया था। ततारियों ने बगदादियों पे हमला कर दिया था, उनके मर्दों को मार दिया था, दूसरी तरफ भेज दिया था, और उनकी औरतों को गुलाम बना लिया था, और उनके बच्चों को गुलाम बना लिया था। मर्द चले गए थे, औरतें थी, और ततारियों की फैमिलीज थी। और उस सोसाइटी में उस वक्त के हुआ क्या कि ततारियों के घरों में मुसलमान औरतें और उनके बच्चे एज ए मुलाजिम यूज होते थे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली हिस्ट्री में जो ईयर्स हैं वो 52 to 56 ईयर्स हैं। 52 to 56 ईयर्स के बाद ततारियों के उस मुल्क में जो गवर्नरशिप थी, जो हेडशिप थी, जो रॉयलिटी थी, जो वजीर खारजा था, वजीर फाइनेंस था, वजीर मुमलिकत था, वो सब बगदादियों के बच्चे थे। ततारियों के बच्चों ने वो लेगेसी नहीं संभाली थी, लेकिन बगदादियों के बच्चे इलीट जॉब्स पे थे। ये कैसे हुआ था? Historians are actually quoted that thing कि this was the mystery and the miracle of that phase of life. ये कैसे हुआ था? क्योंकि उन बगदादियों के बच्चों की जो माएँ थी ना, वो मुसलमान थी, वो डरती नहीं थी। लेकिन डरने का मतलब ये नहीं था कि वो घर से बाहर निकलती थी, चीखती थी, चिघाड़ती थी, अपने हकूक मांगती थी, ऐसे नहीं था। दे हैव द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो देखते थे हमारी माँ काम भी करती है, हमारी माँ जुल्म भी सहती है, लेकिन उसकी आंखें सामने रहती हैं, उसका सर झुकता नहीं है, उसका जर्फ बड़ा है, उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। वो जानती है कि दिस दुनिया इज नॉट द रिजल्ट बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है दिस दुनिया। रिजल्ट कहीं और मिलना है, लेकिन मुझे यहाँ अपना पार्ट प्ले करना है। एंड दे एक्चुअली डिड इट। उन्होंने अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग रखा, उन्होंने अपने बच्चों को बेचारगी, रोना पिटना नहीं डाला। हमारे यहाँ क्या होता है, रो पिट होती है, हाय हम तो लुट गए, हम तेरा तो बाप ही चला गया है, तेरी तो जिंदगी नहीं है, हम तो लावारिस हो गए, अल्लाह माफ करे। जिसका अल्लाह वारिस हो वो कभी लावारिस हो सकता है। एंड दिस टर्म इज एक्चुअली वेरी इनकर्ल्ड इन ओवर सोसाइटी, लावारिस। ये लावारिस, भाई जिसका अल्लाह वारिस हो वो कैसे लावारिस हो सकता है?
जिस औरत ने मर के अपने रब के सामने जाना है वो कैसे कमजोर हो सकती? सो दैट एक्चुअली द माइंडसेट जिसने क्या किया कि जो गुलाम थे वो ही गवर्नरशिप में आ गए अगले 50 ईयर्स, गेम ऑफ 50 ईयर्स, और बसात पलट गई. कैन वी सी द रोल ऑफ अ वुमेन? कैन वी सी द रोल ऑफ द? हमें लगता है कि हम अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे एक बड़े मजे की बात होती है. अब ये बात है किसी के आगे कर दो ना तो दे बिकम लाइक, वो पोस्ट बड़ी वायरल हुई हुई है कि किचन औरत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, यू नो, दिस काइंड ऑफ फनी पोस्ट एक्चुअली कम्स अराउंड अस. लेकिन देखो, सिर्फ जिंदगी का होल मकसद ही रोटी नहीं है. जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा है. ठीक है. और रोटी जो है वो आदमी और औरत दोनों बना सकते हैं, बल्कि जो औरतें घर में नहीं बनाती वो तंदूर में आदमियों से ही लेते हैं हम. सो इट्स नॉट द डिबेट के क्या है क्या नहीं है, बट द रियल पॉइंट इज के हम तो पोलराइजेशन के दौर में है ना, या तो हम एक्सट्रीम राइट पे होंगे या हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे होंगे, मतलब बीच का तो रास्ता हम भूल गए हैं. वी डोंट वांट इट. सो द लेट्स कम बैक टू टॉपिक अगेन के दैट्स एक्चुअली, गिव मी अ सेकेंड. So the question is again, and the point is again कि this is the game of the mindset. The mindset which you raise actually. जो mindset आप raise करेंगे exactly वही mindset अपनी society में देखेंगे. आज रोड पे थोड़ी देर इशारे पे रुकना पड़ जाए ना, आप चिड़चिड़े लोग देखते हैं, गालियां देते हैं, लिटरल गालियां. बड़े बड़े मॉल्स की पार्किंग में आप क्लोजिंग के टाइम पे चले जाएं, जब आप फंस जाते हैं 30-40 मिनट के लिए, आपको पता होता है कि हम फंसने वाले हैं. एवरीबडी नो दैट. हमने ओब्वियसली सबने बारी बारी निकलना है ना, सबको पता है. बट शोर मचाएंगे, हॉर्न पे हाथ रख देंगे. इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां होती हैं, करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी होती है पास, बेहतरीन किस्म की मिलियंस में गाड़ी खरीदी होती है, अच्छी से अच्छी एसयूवी होती है, लेकिन हरकतें वही हैं. ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? ये पढ़े लिखी अवाम है अभी. ये पढ़ी लिखी अवाम, यूनिवर्सिटी से निकली हुई अवाम है. ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के वो लोग हैं जो थैंक यू, सॉरी, ओह थैंक यू, ओह आई सी, ये वो वाले लोग हैं. तो ये क्या हो जाता है वहां जाके जो हॉर्न पे हाथ रख देते हैं, और हमसे वो 20 मिनट बर्दाश्त नहीं होता खामोशी से. हमसे इशारे पे 3 मिनट से 5 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता, हमें इशारा तोड़ना पड़ता है. ये क्या रीजन है? ये यहाँ का प्रॉब्लम है. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द फैमिली, कमिंग फ्रॉम द होम. एक चिड़चिड़ी माँ चिड़चिड़ा मुआशरा बनाती है, एक चिड़चिड़ा बाप एक चिड़चिड़ा मुआशरा बनाता है. और हम चाहते हैं सोसाइटी जो है वो, जो लोग सीजन्स देखते हैं, आई हैवंट सीन एनी सिंगल एपिसोड, बट पीपल यूज्ड टू वॉच, यू नो, द Turkish dramas where, you know, they used to Urtagral and everybody Usman, and people used to see that stuff. लेकिन भाई सोसाइटी पसंद भी बहुत करते हैं. मतलब आई हैव सीन एवरीबडी अराउंड मी, सब ने सब देखा हुआ है, एंड एवरीबडी रिकमेंड मी कि भाई देखो देखो, बट आई हैव माई सर्टन रीजन. मुझे टाइम भी नहीं है और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैंने देखा नहीं इस वजह से. बट पीपल आर वेरी अमेज एंड दे यूजुअली टॉक टू मी कि देखो उन्होंने सोसाइटी बनाई, उन्होंने ये किया. बट आई हैव ओनली वन पर्सन, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली देयर. हम क्या कर रहे हैं ड्रामे देखने के अलावा? I mean, it's good to talk good, it's good to see good, but what actually good we are, you know, doing in our lives. So again, let's come back to our mindset game. So अब scene क्या है कि we women are actually making the society. We have the key, which doesn't have anyone. और आपको पता है आदमियों के पास भी वो एबिलिटी नहीं है सोसाइटी शेप देने की जो हम औरतों के पास है. क्योंकि हम अपनी औलाद को पैदा करती हैं, आदमी पैदा नहीं करता. जो जिससे वो बच्चा आ रहा होता है ना, वो जो उनसियत होती है ना बच्चे की, वो सबसे ज्यादा उसी माँ से ही होती है. ऐसे ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ फिर तुम्हारा बाप. ठीक है. एंड I will get back to this question because this is very important question. It's a very important question which just had, you know, there. So I will get back to it. लेकिन अब हम औरतें करें क्या? ठीक है, अब क्या करें? मतलब जिंदगी में इतनी मसले हैं कि हो गए हैं हम विक्टिम माइंडसेट. What I am going to do now? सबसे पहले तो forgive yourself. अपने आप को माफ करें, आगे जाना है. ठीक है.
You can't move forward with heavy baggages on your shoulder, can you? क्या आप अपने शोल्डर्स पे पत्थर उठा के आगे की तरफ जा सकते हैं? क्या पीछे सारी सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए फल अपने बैग में डाल के आगे का सफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आगे तो सफर करना है इंशाल्लाह। और रहमान, आप लोग इतने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे लोग हो, आप लोगों ने आगे जाना है, आप लोगों ने जिंदगियां गुजारनी है, आप लोगों ने जनरेशन अपने हाथों में लेनी है इंशाल्लाह। तो आप लोगों को सबसे पहले तो यू हैव टू पुट इट, थ्रो इट समवेयर, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? सी, हम वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी इन आवर लाइफ. I always change the story, which I tell you, okay, always work to change your story. You all have your personal stories in your life, right? किसी की अच्छी होगी, किसी में कुछ होगा। वैसे तो एक सीधी सच्ची बात है, हर किसी को दूसरे की स्टोरी अच्छी लगती है, अपनी किसी को अच्छी नहीं लगती। द रीजन इज हम अपने आप को सबसे ज्यादा कम ही समझते हैं, दूसरे को अच्छा समझते हैं। दिस इज ओवर नेशनल प्रॉब्लम। नेशनल प्रॉब्लम चल रही है सब कॉन्टिनेंट की, कि हमें दूसरा अच्छा लगता है, अपना आप अच्छा नहीं लगता। बट दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन चेंज योर स्टोरी, जिस तरह उस माँ नंबर 2 ने अपनी स्टोरी चेंज की थी। कैन यू गाइज चेंज योर स्टोरी इन कमिंग डेज? कैन यू गाइज लुक अप योर सेल्फ इन कमिंग डेज? क्या ये बेचारेपन की चादर जो कि अल्लाह ने आपको नहीं उड़ाई थी और आपने खुद ओढ़ ली है, क्या आप इसको उतार के फेंक सकते हैं? क्या आप लोग ये काम करेंगे? करेंगे तो मुझे बताइएगा। देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, देन द सेकंड थिंग, इंशाल्लाह, then the second thing, strategy towards the everything which is coming in front of you. दुनिया में बहुत सारे मुश्किलात आती हैं और आएंगी और आती रहती हैं, मतलब जिंदगी तो, मतलब there is always chances there, right? Before till then your death, there is always something come, up to you. इम्कान खैर और शर जैसे आखिरी सांस तक है, तो इसी तरह आपकी जिंदगी में कोई भी अप्स एंड डाउन आ सकते हैं जिंदगी के आखिर तक। लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू चेंज डू इट, हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस स्ट्रेटेजी? Being a strategist, I have very clear mindset whenever I do something. I am very much open with everyone, क्योंकि I know what I am doing, I know what I am gonna do, and I know how I take things for me. And it doesn't mean I don't get hurt, it doesn't mean I don't feel emotionally, low. Why don't? We are human beings, we always does, right? This is how we work. हम करते हैं, लेकिन the good point is, when we know how to come out of it, we always try our best to come out of it at our own pace. ठीक है? मतलब सीख जाने का मतलब ये नहीं होता कि यू नेवर एवर, लाइक आप कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं आते, आप आते हैं, आप इंसान हैं, आप आएंगे। ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग, हाउ वी एक्चुअली सेट दिस स्ट्रेटेजी। द फर्स्ट थिंग इज के देखो, हमारी जिंदगी में समझो कोई भी बुरी चीज हो गई, ठीक है, पेनफुल मोमेंट, जैसे अभी फबिया का मैसेज आया हुआ है कि यस यू आर राइट, बट स्टिल दोस पेनफुल मोमेंट्स कम फॉरवर्ड एंड वी डू सम ओवर थिंक एंड वेस्ट सम टाइम। सम टाइम नहीं करते, हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते, हम बहुत टाइम वेस्ट करते। ओके, हम अब देखते हैं हमने करना क्या है। ठीक है, देखो, द फर्स्ट थिंग इज के स्ट्रेटेजी हमें बिल्ड करनी है अपने लिए। हमारे साथ समझो कोई बुरी बात हो गई, कोई बुरा फेज आ गया, कोई रफ फेज आ गया। पहली चीज तो ये कि देखो, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है। द सेकेंड थिंग इज के हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। या तो हम नंबर वन पैटर्न है कि हम देखेंगे या तो अल्लाह ने मुझे सजा दी है। हम ये कहते हैं ना, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है, ये मेरे लिए सजा है, ऐसे कहते हैं। या हम क्या कहते हैं, ये मेरे लिए चैलेंज है, दिस इज अनदर चैलेंज फॉर मी। मेरी अम्मा मेरे लिए चैलेंज है, मेरे अब्बा मेरे लिए चैलेंज है, मेरा हस्बैंड मेरे लिए चैलेंज है, मेरे इन लॉज मेरे लिए चैलेंज है, मेरी स्टडीज मेरे लिए चैलेंज है, मेरा वर्क स्पेस मेरे लिए चैलेंज है। ऐसे ही कहते हैं, या कहते हैं मेरे लिए सजा है ये सारे, या हम कहते हैं मेरे लिए चैलेंज है। ठीक है, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? when your mind is actually telling you कि यार ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से सजा है, आपके दिल में बार बार ये बात, मेरे लिए अल्लाह की तरफ से सजा है, और कुछ नहीं होता, आपके अंदर गिल्ट आता है। और वो गिल्ट जो है ना, वो शैतान चाहता है आप में आए, क्योंकि शैतान जो है ना, वो अल्लाह की तरफ से रजीम है, मरदूद है, धुतकारा हुआ है। एंड व्हाट ही एक्चुअली वांट यू टू फील कि आप भी धुतकारे हुए हो, आप भी कम हो,
आप भी पीछे हो। दिस इज उसको उसको मायूस मोमिन, हदीस में, हदीस के अल्फाज सही हदीस है कि शैतान को मायूस मायूस मोमिन जो है वो पसंद है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता ही है कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो। सो जब जब भी आपको ये लगता है ना कि अल्लाह की तरफ से सजा आ रही है मेरे पास, तो जो माइंडसेट डेवलप होता है वो क्या होता है आपका दूसरा, उसके अल्टरनेट पे मायूसी वाला, गिल्ट वाला। जबकि बीइंग ए मोमिन, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। एक मुसलमान को गिल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास इस्तगफार की ताकत है। वो अल्लाह से इस्तगफार करता है, और जब वो अल्लाह से इस्तगफार करता है वो गिल्ट मिट जाता है। फिर अगर हम अब ये चीज तो हमने देख ली कि हमारी स्ट्रेटेजी नंबर वन है कि वी आर नॉट गोइंग टू सी इट एज ए पनिश ऑफ अल्लाह। क्योंकि अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह अपने बंदों से एक सजदा करके, बंदा मोमिन की आंख से मक्खी के पर के बराबर भी आंसू टपकता है तो अल्लाह क्या करता है, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होना, सारे गुनाह माफ कर देता है। ये भी सही है हदीस। ठीक है। नंबर टू, हम उसको देखते हैं एज ए चैलेंज। अच्छा, वेन एवर आई से वन वर्ड चैलेंज, चैलेंज का वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक यूं करके ना बल पड़ता है कि नहीं पड़ता? whenever anybody says कि यार ये तुम्हारा चैलेंज है, चैलेंज का वर्ड सुनते ही बल पड़ता है कि नहीं पड़ता माथे पे? मुझे जरा करके बताएं। होता है ना? दैट्स ट्रू। जब भी आप किसी चीज को चैलेंज लेंगे, आपकी हार्ट रेट भी चेंज होगी, आपकी आपकी पल्सेस का रेट भी चेंज होगा, आपकी माइंड, आपकी नई वायरिंग हो जाती है, स्पार्क आ जाता है। ठीक है। सो सीन ये है कि व्हेन वी टेक समथिंग एज ए चैलेंज, हमारे अंदर एग्रेशन डेवलप करता है। और एग्रेशन क्या करता है कि आपका लेफ्ट ब्रेन को डाउन कर देता है। whenever we get to we have two sides of our brain, जो कि मैंने द होल ब्रेन चाइल्ड में काफी डिस्कस की भी है। एक आपका होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है आपका राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन आपका इंटेलिजेंस और आपकी जो है वो थिंकिंग पावर को डील कर रहा होता है, और राइट ब्रेन इज एक्चुअली डीलिंग विद योर emotions and the guilt, the history, the emotional stuff, बेचारा मासूम. So scene ये होता है कि whenever the aggressions come up, the emotions come up, intelligence goes down, emotions comes up, and नीचे thinking pattern going down, they don't have anything to do with you. कौन आप? ठीक है। सो वेन एवर यू टेक थिंग्स एज ए चैलेंज, जो कि बहुत ज्यादा फेमस चीज है कि चैलेंजिंग हो जाए, चैलेंज एक्सेप्ट करें, अच्छी बात है करें, लेकिन जब कोई जबरदस्ती आके चैलेंज गिरे तो करे ना, मतलब हर चीज को चैलेंज ही बना देना है आपने, तो कितने चैलेंजेस से लड़ना है आपने जिंदगी में? थक तो आपने जवानी में ही जाना है। हम तो बचपन से बच्चों को 3 साल की उम्र से कहते हैं इसको चैलेंजिंग, चैलेंज में डालो, चैलेंज में डालो। कितना चैलेंज में डालना है? इस उम्मत में करने के काम बहुत ज्यादा थे। हम तो यहाँ मतलब उम्मत ने बड़े बड़े काम करने थे, हमने यहाँ इनको छोटे छोटे लाइनों के ऊपर ए लिखने पे ही चैलेंज पे डाल दिया। दिस इज वेयर वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग। तो फिर हम क्या उम्मीद करते हैं इस उम्मत से? यही करेंगे, फिर यही होगा। And then the third point, that how we are going to see things if we are not going to take it as a punishment, we are not going to take it as a challenge, and how we are going to see things in our lives. What if I tell you to take it as a gift? Take it as a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Because when you start taking the difficulties as a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, what actually happens, it builds the gratitude inside yourself. या आप में gratitude डालता है. And this actually builds the gratitude inside yourself and in your life and in your heart. And this is what we need now. हम शुक्र गुजार रहे नहीं, क्योंकि हमारे पास शिकायतें बहुत है करने को। हमारे पास इतनी शिकायतें हैं, इतनी शिकायतें हैं, इतनी शिकायतें हैं, और शुक्र करने के हमारे पास कुछ है ही। हालांकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह इब्राहिम में क्या कहा है, ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। लेकिन शुक्र करने का वक्त अभी आ ही नहीं रहा ना हमारे पास। शुक्र करने पे माइंडसेट जा ही नहीं रहा ना। अभी तो शिकायतें ही बहुत है ना, अभी तो अपने रोने ही बहुत है हमारे पास। तो हाउ इज गोइंग टू सॉल्व? कैसे होगा? करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज, you have to change the story, you have to change the strategy, and then you can make your life meaningful. मिराल कह रही है कि we can take it as a learning experience. Definitely. मेरी बात सुने,
everybody want to do some very premium courses. I conduct the training sessions, so I understand people used to pay very easily when it comes to a good training course. Something which is really going to change them. Something which is, 100% श्योरिटी हो कि हाँ यार यहाँ पे जब मैं एडमिशन लूंगी मेरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि द ट्रेनर एक्चुअली डिजाइन थिंग्स सो वेल. हमें ट्रेनर की डिजाइन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है. But what if I tell you that Allah has designed your lives, your taqdeer, your each and every movement, your personality, your mindset, your siblings, your in-laws, Allah has designed everything according to your personal growth. देखो अल्लाह ने हमें जन्नत के लिए स्ट्राइव करने को कहा हुआ है ना, ओवर गोल इज जन्नत. तो क्या मतलब है, अल्लाह ताला ने जो हमें इन लॉज दिए क्या वो हमारी जन्नत की राह में रुकावट थे जो अल्लाह ने हमें दिए हुए? ऐसा तो नहीं है. इट मीन्स कि इन्हीं रिलेटिव्स के साथ गुजारा करते हुए हमें जन्नत में जाना है, इन्हीं चैलेंजेस को फेस करते हुए हमें जन्नत में जाना है. एवरीथिंग इज एक्चुअली देयर अकॉर्डिंग टू यू. जिस ट्रेनिंग में हम जाना चाहते हैं अल्लाह ने हमें मुफ्त में हमारी जिंदगी दे दी है. ये जो एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं ये हमें बनाने के लिए मिलते हैं. ये जो दुख हमें मिलते हैं ये हमें बिल्ड कर रहे होते हैं. जो तकलीफें हमें मिली होती हैं ये हमें बना रही होती हैं. And we don't have this one life here. We don't have this one life here. ये दुनिया में एक ही जिंदगी है, लेकिन हमारी अगली जिंदगी जो है ना, जो हेयर आफ्टर है, वो बहुत बड़ी है, वो हमेशा रहने वाली. तो वहां तो वो भी मिलेगा जो हम चाहेंगे हमें मिल जाएगा. मतलब और चाहिए क्या, ये इन्वेस्टमेंट का जोन है. यहाँ कर लो अच्छे काम, वहां जो चाहोगे मिलेगा. हम कितने शौकीन है ना गुड इन्वेस्टमेंट के. वो इन्वेस्टमेंट जो डूबे ना, ऑलवेज पीपल गो देयर कि वहां इन्वेस्ट करो जहाँ पे नुकसान ना हो. सो व्हाट इफ यू इन्वेस्ट हियर इन दिस लाइफ एंड देन द बेस्ट रिवॉर्ड इन हियर आफ्टर. और ऐसा माइंडसेट बिल्ड करें, क्योंकि यू गाइस आर वुमेन एक्चुअली हैज टू रेज द जनरेशंस. आप सोचें कि एक स्ट्रॉन्ग औरत की नस्ल कहाँ तक जाती है, कहाँ तक वो जनरेशन लेके जाती है. देखिए द वेरी सिंपल थिंग इज कि हमें कैसी औरतें चाहिए. हमारी हमारी इस वक्त अगर हम कहना हम पाकिस्तान में रहते हैं. पाकिस्तान में कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं. मैं इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रही हूँ, व्लॉगर्स पब्लिक स्पीकर्स की बात नहीं कर रही. इंटेलेक्चुअल कौन होता है हमें तो ये भी नहीं पता होगा इस वक्त. हमें लगता है शायद बातें करने वाला इंटेलेक्चुअल हो. ऐसा नहीं. कितने वो लोग हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू और इस्लामिक वर्ल्ड व्यू पे कमाल रखते हैं. कितने वो लोग हैं जो टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल भी इस पे सोच के करते हैं. कितने वो लोग हैं जो हर तरह के इंसान को हैंडल करने का और उसको रिस्पेक्टफुली डील करने का जो है वो खासा रखते हैं. इंटेलेक्चुअल हमारे पास कितना है? हमारे पास मुश्किल से पाकिस्तान में 2-3 इंटेलेक्चुअल हैं जिनको मैं जानती हूँ इंटेलेक्चुअल. रेस्ट नहीं. हमें ना स्ट्रॉन्ग माइंड क्यों चाहिए? आज ये आप लड़कियां अपने ऊपर काम करना शुरू करोगी ना, तो माशाल्लाह आप लोगों के आगे लाइफ है. हर एक के घर से 2-2, 3-3, 1-1, 4-4, 5-5 बच्चे भी अगर इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं ना, अगले 50 साल बाद, मार्क माय वर्ड्स, हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन आ सकता है अगर आज आप लोग अपने माइंडसेट पे काम करें. अगर आज स्ट्रॉन्ग लड़कियां बन गई ना, कल को यही स्ट्रॉन्ग माएँ बनेगी. और स्ट्रॉन्ग माँ का मतलब ये नहीं होता कि बाप बुजदिल हो जाता है, आदमी को कमतर कर देती हैं, आदमी को पाँव की जूती बना लेती हैं, आदमी जो है वो एटीएम कार्ड होता है. नो. ए ग्रेट वुमेन मेक श्योर कि उसका शोहर इतना, कहते हैं ना कि मलका जो होती है ना उसके सर का ताज होता है उसका शोहर. पाँव की जूती थोड़ी बनाना होता है शोहर. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारें कि जिसमें विक्टिम विक्टिम माइंडसेट ना हो. ये विक्टिम माइंडसेट आपको कहीं का नहीं रखेगा. दुनिया की जिंदगी में भी आपने हर वक्त परेशान रहना है, और आखिरत में फिर मतलब वो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमारे एक्शंस कैसे हो. अल्लाह की तरफ से दी हुई हर जो हमारे पास चीज है, हर तरह की हमारे पास जो भी लोग हमारी जिंदगी में है, जो भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आई है, दे आर डेफिनेटली बाय द साइड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. देखिए मैं ये नहीं कहती कि हम अल्लाह से मुश्किलात मांगे, नहीं. मैं कहती हूँ अल्लाह से आसानी मांगे. अल्लाह से कि या अल्लाह हमें आसानी के साथ इस दुनिया में रख, आसानी से हमें जन्नत में ले जा. अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाब में यसीरा, हमारी हिसाब भी आसान करते.
एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के सामने जो है एक शख्स दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे अपना शुक्रगुजार बंदा बना। हजरत उमर ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, कौन सी दुआ है कि शुक्रगुजार बना दे, यानी कि मैं हर वक्त शुक्र करता रहूं। तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा उमर क्या आपने कुरान में नहीं देखा कि अल्लाह ताला के वो लोग जो अल्लाह के हर वक्त शुक्र अदा करते हैं और वो जन्नत में भी जाते हैं तो शुक्र करते हैं। तो हजरत उमर ने कहा कि वाह, उमर तो कुछ नहीं जानता। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना दे, वो बंदा जिसके पास शुक्र करने की बेतहाशा तरीके हो। और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जो हमारे टैलेंट्स हैं उनको, देखो बड़े बड़े जो लोग हैं ना इस दुनिया में आए हैं वो सब मिट्टी के नीचे हैं, हमने भी जाना है, हमने भी मरना है, हम हमेशा के लिए नहीं आए हुए। लेकिन जो हमें एक जिंदगी मिली है ना यहाँ, उसको हमने इंशाल्लाह रहमान फुल यूटिलाइज करना है, उसमें बरकत रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह हमें बरकत दे, हमारी जिंदगी में हमें बरकतें दे। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में बरकत दे, हमारे ईमान में बरकत दे, और जो हमारी लाइफ में जैसे भी हालात रहे हैं, जैसे भी हालात रहे हैं, let's try to rewrite your story. Rewrite your story, change the strategy, the way you are seeing difficulties in your life. डिफिकल्टीज आनी है, डिफिकल्टीज आनी है, लेकिन आपने बड़ा बंदा बनना है। एक बड़ा बंदा एक छोटे बंदे में क्या फर्क होता है? ठीक है, मैं हमेशा सर सलमान की बात कोट करती हूँ और मुझे हमेशा अच्छा लगता है उनकी ये बात कोट कर, हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ आपके उस्ताद की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जब आप उनको सोचने बैठते हैं तो आप कहते हैं वाह, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। वो उनकी एक बात है, हमेशा कहते हैं कि एक बड़ा बंदा वो होता है जिसकी जो फिक्रें होती हैं वो बड़ी होती हैं, लेकिन एक छोटा बंदा वो होता है जिसकी फिक्र सिर्फ उसकी हद तक, उसकी जात तक महदूद रहती है। और ये जो विक्टिम माइंडसेट है ना, ये सिर्फ इसीलिए बिल्ड होता है कि हमारी सारी फिक्र, हमारी सारी तवज्जो, हमारा सब कुछ सिर्फ अपने आप से शुरू होकर अपने आप पे खत्म। और पीपल लिंग्विस्टिक्स ही ऐसी बन जाती हैं जो रोती धोती ही रहती हैं हर। सो ऑलवेज हेड्स अप, ऑलवेज से ऑलवेज हेड्स अप। हमें तो हमें जो स्ट्रांग बनना है। अच्छा, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि मैंने जब पूछा था कि कोई ऐसी चीज जो मतलब जिसपे मैं स्पेशल बात करूं, सो आई गॉट फ्यू थिंग्स जो कि मैं बड़ा ब्रीफली आपके मैं उससे गो थ्रू करूंगी। वो मैं इसलिए करूंगी ताकि थोड़ा सा हम इसको जो है वो देख सकें। गिव मी अ सेकंड सो आई कैन ओपन दोज टॉपिक्स देयर। ओके, देखें, जब एक, मैं ना सारी चीजों को एक चीज में कवर करती हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि टॉपिक टू टॉपिक जाना इज ए वेरी बिग थिंग, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्स समझ लेते हैं ना अपनी जिंदगी में, चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, सो अगर हमें कहीं से भी, देखो इस्लाम ने ना कहीं से भी औरत को सरप्रेस नहीं किया हुआ, इस्लाम ने कहीं से भी औरत को सरप्रेस नहीं किया हुआ, बट द मेन थिंग इज कि हमारा माइंडसेट ही सरप्रेस्ड है। ठीक है, तो हमें अपने माइंडसेट पे काम करना है, हमने अपने ऊपर काम करना है। और अल्लाह ताला की तरफ से जो भी लॉ है ना, दैट इज एक्चुअली टू प्रोटेक्ट अस इन एवरी वे, दैट इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। अगर हमें जेंडर रोल्स मिले हैं ना, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट अस इन एवरी वे, दे आर हियर टू मेक श्योर कि हम अपने बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। सो दिस इज समथिंग कि इस पे हम कभी बैठ के कहते हैं ना तफसील से बात होने वाले टॉपिक से, विच आई गॉट, but I get but I think whatever I shared is actually helpful for you guys. एक क्वेश्चन आया हुआ था ऊपर, बस मैं वो लेती हूँ and then I will conclude and you guys can ask the questions inshallah. Okay, question था कि but there are so many kids which are raised by very strong mothers but still lack of the character. I mean they do the same which others do. What can we say about this? Okay, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग मदर की जो एक डेफिनेशन है, अगर मैं पूछूं तो वो क्या है? वो बहुत डिसिप्लिन रखती है, वो बहुत अच्छा बच्चों को रेस करती है, वो बहुत अच्छे बच्चे उसकी आंख के इशारे पे चलते हैं, उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, या वो बहुत, क्या यही यही है क्या हमारे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मदर की डेफिनेशन? देखें, देर आर टू थिंग, टेक इट एज ए फॉर्मूला। ठीक है, एज आई सेड ये हम असूली बात, मैं हमेशा असूली बात करती हूँ। फाउंडेशनल बात करने का फायदा ये होता है कि यू ऑलवेज हैव द फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू रेज अप द जो भी पॉइंट और आर्गुमेंट आपने क्वेश्चन रेज किया। जब आप किसी बच्चे को कंट्रोल करते हैं ना,
जब भी आप किसी बच्चे को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल क्या होता है? ये खाना है, ये नहीं खाना, इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी, ये पहनना है, ये नहीं पहनना, यहाँ जाना है, तो दिस इज ऑल कंट्रोलिंग माइंडसेट। जब आप किसी बच्चे को कंट्रोल करते हैं तो उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आता ही आता है। फिर आप कहेंगे बच्चे में बिहेवियर इश्यूज हैं, कंट्रोल करना छोड़ दें। ठीक है, कंट्रोल ना करें, ना करें तो क्या करें? इंसानों की तरह रखें, जैसे इंसान की तरह। तरबियत, तरबियत क्या होती है? तरबियत कंट्रोल करना तो नहीं है। तरबिया कंट्रोल करना नहीं है, तरबिया इज समथिंग एल्स। हमने तरबिया को डेफिनेशन ही गलत की हुई है। तो अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप बच्चे की जात पे शक करते हैं, उसके टैलेंट्स, उसकी एबिलिटीज पे शक करते हैं, उसके उसकी किसी भी चीज को अगर आप शक की नजर से देखते हैं, बच्चे के करेक्टर में प्रॉब्लम आती है। यानी कि जिस भी इंसान के करेक्टर को आपने देखा है ना कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है, द बेसिक थिंग इज के घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। तो दीज आर द टू थिंग्स। अच्छा, एमन कह रही है कि टीच देम फर्स्ट एंड देन गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू चूज। बच्चों, अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लामहा फुजूरहा व तकवाहा। अल्लाह ने नेकी और बदी हर इंसान में वदियत कर दी है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। एक बच्चा भी जो है वो जानता है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। बच्चे जिन जिनके बच्चे हैं दे टोटली अंडरस्टैंड के बच्चों को ये सेंस होती है। ये जो हम जबरदस्ती ठूंसने वाला काम करते हैं, दिस एक्चुअली बिकम्स द प्रॉब्लम एंड देन वी सी द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, हमारी पेरेंटिंग की प्रैक्टिसेस में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत एक बड़े लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है। अगर हम नहीं करेंगे, वी विल कीप सीइंग सच माइंडसेट्स व्हिच आर अराउंड अस। ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं माशाल्लाह। आजकल के वैसे जिस तरह आजकल का दौर जो है, जो वक्त है, वो इतनी तेजी से गुजर रहा है, तो बच्चे भी उसके अकॉर्डिंग है। दे डोंट टेक डेज, दे टेक नाउ सेकेंड्स। सो जब एक माइंडसेट ही फुल स्पीड पे है और माइंडसेट ही जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो यू हैव टू डील देम अकॉर्डिंग टू द न्यू चैलेंजेस व्हिच वी आर फेसिंग। My question was like sons of Hazrat Yaqub were raised by them as well, but they did wrong. Parenting was done by the same parent. Yes, देखिए, उनने वक्ती तौर पे उन्होंने बुराई की थी और फिर उन्होंने माफी भी मांग ली थी। ठीक है, तो उन्होंने गलती की थी। और हर इंसान की ना एक तकदीर होती है, हर इंसान का एक पाथवे होता है जिसे अल्लाह ने उसको गुजारना होता है। जब मैं भी अपनी टीन्स में थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे। Obviously, I was not the way now I am and then I what I become. लेकिन अल्लाह की एक तकदीर थी, अल्लाह ने कुछ पाथवे से गुजारना था। ना गुजारा होता तो मैं आज उन लड़कियों को, उस यूथ को मैं नहीं समझ पाती। ठीक है, जिस जिस टेन्योर से अल्लाह ने गुजारा है, तो मैं उससे नहीं गुजर पाती। तो अल्लाह ने जिन भी रास्तों से गुजारा है जिंदगी में, डार्क थे, शाइनी थे, ब्राइट थे, वट एवर दे वर, actually they give an input to my experiences where now I can do very well for them. हमारी जिंदगी में बहुत सारे इवेंट्स, बल्कि सारे ही इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें आगे के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला की एक तकदीर भी होती है। तो बजाय ये कि हम किसी इंसान को लेबल करें, can we make dua for people around us and can we say कि yes, Allah has want something more from them and they are actually, working on the phase, and inshallah Rahman, one day they will change. And this should be the mindset of a dai. We don't judge people. We don't say कि उनके character में problem है. I always say कि they are in some kind of phase. क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान दीन फितरत पे पैदा किया हुआ है। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता लगता है कि अल्लाह ने हर बच्चे को दीन फितरत पे पैदा किया था। ये उसके माँ बाप होते हैं जो उसको वो बनाते हैं, या उसका नर्चर होता है जो उसको कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है। तो बात ये है कि देयर मस्ट बी समथिंग फॉर देम। हमें अल्लाह से हमेशा हुस्न ज़न रखना है और अच्छी की दुआ करनी है इंशाल्लाह, ताकि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन जो है वो आ, उनके लिए खैर करें और वो इस उम्मत के लिए जो है रिसोर्स बन जाए। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हमें इस उम्मत के लिए रिसोर्सेज चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, हमें ये सोसाइटी पीसफुल चाहिए। देखिए, हर बंदा जो गलत कर रहा है,
That is their taqdeer. We cannot make an accountant for anybody else. We should account our own selves. हमें अपने अकाउंट का ख्याल रखना चाहिए इससे पहले कि हमारा अकाउंट अल्लाह के सामने खुल जाए। ये हजरत उमर का बड़ा खूबसूरत कोट है। और दूसरी चीज ये कि अल्लाह ने ना कयामत के दिन हमसे हमारा सवाल करना है। तो हमें अपने अपने अमाल को सीधा रखना है। अल्लाह ने हमसे पूछना है आपने क्या किया था। हमसे हमारे क्वेश्चंस होने हैं। ठीक है। और you are actually also in a part of Taqdeer. So if they are doing wrong for you, so you are actually in the, this is a lesson for you. See what you can do differently next time, right? So this is how it is. So this was the whole session, I guess. This was the whole session. Okay, make them, mute. नहीं म्यूट अगर कर दें आप लोग। Thank you. So this was it, inshallah, guys. I hope that was well for you. If anybody want to, have any question, like there's some families after my decision. Why? Okay. There is one question. Only question ये किया है कि would you please elaborate the role of education for a woman? Like there are some families after marriage, they say that why do you want to pursue the education? Your duty is at home, in kitchen. Okay. Personally speaking, I guess this is actually live stream. If you guys close the live stream, then I would share some points over it. If you please do it, then that would be great. So I can discuss on this topic well with you guys. हमें शादी के बाद जो है वो परसू नहीं करती लड़कियां कैरियर ये सब कुछ एंड देखो ऑर्गेनाइजेशंस चलती रहती हैं, बट एट द वेरी मोमेंट यू आर देयर टू मेक अ फैमिली। ठीक है कि आपने जनरेशन रेस करनी है। ठीक है। एंड यू आर एक्चुअली थिंकिंग कि मैं अपने घर को ना देखूं, मैं दुनिया की इस्लाह कर लूं। ये सोसाइटी इसलिए अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं ना, वो ये है कि हमारे घर तो खराब हुए हैं लेकिन बाहर हम बहुत अच्छे हैं। बाहर हम जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन घर में हमारी औलाद हमारी शक्ल देखना नहीं चाह रही। सो द मेन रोल ऑफ वुमेन इज टू सी हर फैमिली एंड हर हस्बैंड एंड हर एवरीथिंग। कैरियर परसू हो जाता है। आई पर्सनली डिड इट इन माई लाइफ एंड आई पर्सनली हैव सीन दिस। कुछ टाइम के बाद जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े होना शुरू हो जाते हैं, यू गेट टाइम टू वर्क ऑन योर कैरियर एज वेल। अगर आप उसमें भी बैलेंस कर सकते हो तो आप वो कर सकते हो। देयर आर टू थिंग्स, there are some mandatory roles and there are some elective roles. Allah has give you the mandatory roles. See, Allah makes you a wife, Allah makes you a daughter, Allah makes you a sister. This is what the mandatory roles. You cannot run away from these roles. But there are some roles which electively you choose. Like if I am a master therapist, I used to do therapy work with my clients. This is my elective roles. I am a trainer. This is my elective role. I am a coach. I am I am an entrepreneur. This is my elective role. I choose it for myself. But this was not a mandatory roles. So there are very huge difference between the mandatory roles and the elective roles. So आपको अपनी priority जो है वो set करनी है, आपको अपनी priorities पे काम करना है, and you can make sure कि आपकी mandatory roles जो है उन पे फर्क ना आए। ठीक है। रोजे क़यामत अल्लाह ने मुझसे ये नहीं पूछा कि वो शबाना को जाके तुमने दावा दी थी। अल्लाह ने मुझसे ये जरूर पूछ लेना कि तुम्हें ये 2 या 3 बच्चे मिल गए थे एंड व्हाट यू हैव डन विद देम। क्योंकि ये बच्चे खालिद बिन वलीद जैसे भी हो सकते थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे भी हो सकते थे। ये बच्चे जो है ये बहुत अच्छे रेज हो सकते थे। क्या ये मेरी औलाद जो है जब हजरत ईसा आए थे, क्या मेरी नस्लें उनके साथ खड़ी हुई थी, या वो अपनी ही एक दुनिया बसाई हुई थी और वो अपने ही वर्ल्डली गोल्स के पीछे जो है वो लगे हुए थे। सो वी हैव टू मेक थिंग्स सो क्लियर इन देयर, हियर वी एक्चुअली नीड टू थिंक वेरी विजिबल। शादी के बाद पहले 3-4 साल या 5 साल का गैप देने से कुछ नहीं होता। यू बिकम मोर माइंडफुल,
आप अपने काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसी भी मदर्स हैं जो अपने काम को करती तो रहती हैं, लाइक मैंने पूरा 100% कट ऑफ जो है वो कुछ टाइम के लिए किया था, लेकिन देन आई स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन माई एट माई ओन पेस। माई हस्बैंड नोज सो वेल, माई इन लॉज नोज मैं क्या करती हूँ, एंड एवरीबडी यू नो अराउंड मी नोज के अच्छा उसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो घर है। ठीक है, me myself, I'm an entrepreneur. I'm a very well therapist. I charge so high in my therapy session. I'm a trainer. I train the people around the globe, right? But what actually I do, I cook my own food. I clean my own home. I clean my own dishes, and this is what I do, and I don't have any shame over it. I can proudly say I do it. Why? Because this is my first role. My husband, my kids, my family eat the food which I cook actually for them. I clean their dishes. I don't have any shame over it. I simply can hire, house helps. This is not a problem for me at all. But I don't, because I know my rules. I know by the end of the day, I will be happily to give answer to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, I did my best. I did my best there. Now I need Jannah. Now I need Jannah. I am doing my best here. I need Jannah. सही है, क्योंकि किसी को जज करके किसी को कुछ करके मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बट अपनी दिल पे नजर रख के अपने अमाल पे नजर रख के मुझे सब मिल जाना है। So I shared my personal stuff with you guys because you girls are there where I was years back. ठीक है, मैं भी वहां पे थी जहां पे सोचा आप लोगों को। ठीक है, so उस टाइम पे when I was choosing this and I was doing this, everybody was like तुम नहीं कर सकोगी, तुम्हारा आगे खत्म हो जाएगा सब, तुम्हारा नाम भी मिट जाएगा फसिया, अगर तुमने इस तरह से गैप लोगी तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। I have other responsibilities now. मुझे पता है इंशाल्लाह और रहमान अल्लाह ने मुझसे काम लेना होगा, मुझे आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। But right now my younger kids needs my full attention. They need my undivided attention. मुझे काम के और सेलेक्ट किए मैंने। The basic thing is family, then everything comes next. And there are my students who are actually doctors. They are doing, their jobs alongside. They are giving their 100% attention to their family. उनको पता है उन्होंने इससे इस और तक घर से बाहर होना है, but जब वो घर में होंगी, they are totally with their kids. There are some mothers who are doing teaching. They know कि इस टाइम से इस टाइम तक वो वहां होंगी, लेकिन इस टाइम से इस टाइम तक they will be at home. Some mothers take breaks. So this is how it is. Baki, if anybody want to take my personal session, so you can always ask the admin to give you my official number, not my personal number at all. So they can give you. Otherwise, you can go to www.fasihakhan.com. You can get me there. I was there, always there. So this is how things work for me, and I do believe कि औरत से ज्यादा जो है वो कोई भी इन इमोशनल स्टफ और ऑफिशियल स्टफ को मैनेज करना नहीं सीखता। तो औरतें जो हैं दे आर ब्लेस्ड विद द द फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे में कितनी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यूज दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन योर इन योर पर्सनल बेनिफिट। दिस इज योर पर्सनल बेनिफिट। इफ यू आर स्ट्राइविंग फॉर जन्नत, दिस इज योर पर्सनल बेनिफिट। इधर कोई वो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, दिस इज योर पर्सनल बेनिफिट, गो फॉर इट। So this is how it is. Rest, I believe now it's time I should go, and we'll see you guys in any other next session if the guys arrange, and inshallah we will definitely again come and meet up and discuss things around. So see you guys inshallah. Take very good care of yourself. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone.